Assalamu alaikum and good morning to all the students of class 4th. I hope that you all are doing well. Today is Monday, 26th April. This video is for English A. We are going to start unit number 3. First we will read it and then we will do hard words, right? So the name of unit number 3 is Anansi and 5. We will read page number 26 and 27. So students, take out your books of New Oxford Modern English. Anansi and 5 is a story, and I have told you that in the story we have some characters, and I have told you that who the characters are. Characters कौन होते हैं? So these are all the characters to whom you are going to meet in this story. First one is Anansi, then 5, Mrs. Rabbit, Mr. Duck, Miss Frog, and Mrs. Shrew. Shrew is a kind of a mouse. ये mouse की चूहे की एक किस्म का एक जानवर है, ठीक है? So you will come across with all these characters. So let's go to the story. Open page number 26, unit number 3, Anansi and 5. So first of all, let me tell you about the story. So when we will read it, you will have an idea that what are we going to read in this story, right? So students, Anansi and 5, it is the story around Anansi. ठीक है, ये एनएनसी के बारे में एक कहानी है. ठीक है, एनएनसी जो है वो एक अजीब किस्म की एक मखलूक थी. ठीक है, कभी तो वो आदमी होता और कभी वो स्पाइडर, एंड समटाइम्स ही वॉज अ मिक्स ऑफ दीज टू. कभी वो इन दोनों का मिक्स होता. ठीक है, ही वॉज अ ट्रिक्स्टर एंड इन दीज डेज ही वॉज हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम. और ये क्या करता था, ये लोगों से ट्रिक्स खेल के उनसे अपना फ़ायदा हासिल करता था. ठीक है, अब इस स्टोरी में 5 का क्या कैरेक्टर है. 5 जो है वो एक विच का नाम है. ठीक है, एंड एनएनसी गेट्स अ ट्रिक फ्रॉम 5 एंड देन ही यूजेस दैट ट्रिक ऑन एवरीबडी अराउंड हिम. So what was that trick and on whom and how he plays that trick we are going to read in this story. As I have told you about the characters and on all those characters he plays that trick. ठीक है, ये इस विच से एक ट्रिक सीखता है और जो कैरेक्टर्स मैंने भी आपको बताए थे ये उन कैरेक्टर्स पे ये पूरे वो जो ट्रिक है उसको प्ले करता है और उनसे खाना लेके खाता है, अपना फ़ायदा हासिल करता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Once upon a time, long ago, there lived a creature called Anansi. Sometimes Anansi was a spider, sometimes he was a man, and other times he was a strange mix of the two. As I have told you that Anansi was a strange creature, वो अजीब किस्म की मखलूक थी. Sometimes he was a man, sometimes he was a spider, and sometimes he was a mix of these two, as you can see in the picture. Anansi was a trickster and he was having a difficult time. He had no money to buy food for his family. As he walked around the village early one morning, he had a scowl on his face and a growl in his stomach. अब एनएनसी जो है ये अभी मैंने आपसे कहा कि ये लोगों से चालें चल के उनसे अपने लिए खाना हासिल करता था या अपना फ़ायदा हासिल करता था. और अभी इस पे बड़ा मुश्किल टाइम चल रहा था. तो एक दफ़ा ये गांव से गुज़र रहा था तो इसका फेस पे बड़ा सा गुस्सा था और इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. ठीक है, पासिंग बाय अ नेबर्स हाउस एनएनसी हर्ड समथिंग दैट प्लीज्ड हिम. पड़ोसियों के घर के पास से गुजरते हुए उसको एक आवाज़ सुनाई थी जिसको सुन के वो बहुत खुश हुआ. द नेबर वॉज एन ओल्ड विच. शी वॉज एन एंग्री एंड अनप्लेजेंट विच who became furious whenever anyone said her name. ये एक जादूगरनी थी, एक चुड़ैल थी जो कि अगर उसका कोई नाम लेता था तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था. ठीक है, She hated her name. All through her life, people had laughed or looked surprised when they heard what her name was. पूरी ज़िंदगी जब लोग उसका नाम सुनते थे तो वो या तो हैरान होते थे और या फिर उस पर हंसते थे. कैन यू गेस वट हर नेम वॉज. क्या आप गेस कर सकते हैं कि उसका क्या नाम था. इट वॉज 5. इसका क्या नाम था. 5. एनएनसी पीक्ड थ्रू अ गैप इन द विच फेंस. फेंस इस बैरियर को कहते हैं, ये जो लकड़ी का आपको नज़र आ रहा है ये किसी भी एरिया को क्लोज़ करने के लिए लगाया जाता है. ठीक है, तो अब एनएनसी या आप देख सकते हैं ये कैसे उसमें से ऐसे झांक के देख रहा है उसको.
She was stirring her big cooking pot and muttering and mumbling up spell. अब वो क्या कर रही थी, एक उसका वो जो बड़ा सा एक पॉट था उसमें वो कुछ मिक्स कर रही थी, कुछ चीज़ें उसमें हिला रही थी उसको, वो जो उसका पॉट था उसमें, और साथ साथ कुछ बड़बड़ा रही थी, कुछ बोल रही थी मुंह मुंह में, ठीक है, जिसकी समझ कम आती है दूसरों को. The smoke and sparks were blue and green, so Anansi knew she was cooking up some big magic. और जो उसके शोले थे और जो उसका धुआं था वो ग्रीन और ब्लू था, तो एनेंसी को पता चल गया कि ये आज कोई बड़ा मैजिक हो रहा है यहाँ पे. Suddenly she her snatched up her staff and started to pound it on the ground as she walked around the pot. अब उसके अपने जो स्टाफ कहते हैं, जो उसके जो लोग होते हैं जो उसके लिए काम करते हैं, ठीक है, अब वो गुस्से में होती थी और वो क्या करती कि उनको पकड़ती और ग्राउंड पे उनको मारती जाती और साथ साथ वो जो पॉट था उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती. एनेंसी लिसन केयरफुली टू व्हाट शी सेड, और साथ साथ वो जो कुछ बोल रही थी एनेंसी ने वो सुन लिया था, और वो क्या था, आई कर्स एनीबडी हु सेज द वर्ड 5 टू डिसअपियर फॉर एवर. क्या कहती थी कि मैं बददुआ देती हूँ जो भी कोई 5 वर्ड यूज़ करेगा वो हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाए. Anansi rubbed his hands together and jumped around on his 8 hairy legs. अब उसकी क्या बॉडी बनी है कि उसका जो फेस है वो मैन का है और बाकी उसकी जो बॉडी है वो स्पाइडर की है, ठीक है, तो वो अपने ऐसे हैंड्स को रब करता है और उछलता उछलता वहाँ से चला जाता है. अपनी 8 लेग्स है ना अब स्पाइडर की. This could make me some money or get some food on the table for my family. He smiled widely and his sharp teeth sparkled. अब वो क्या सोचता है, कहते हैं कि अब मैं ये ट्रिक यूज़ करके अपने फैमिली के लिए खाना लेके जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और फिर उनके लिए खाना लेके जाऊंगा. और फिर वो ऐसे बड़ी सी स्माइल देते हैं और पूरे उसके दांत चमक रहे होते हैं. Anansi rushed to the path that ran along the river bank between the village and the market place. अब एनेंसी जो है वो वहाँ से तेज़ी से भागता है, जो पूरा रास्ता है गांव और मार्केट के दरमियान दरिया से होता, उसके किनारे पे होता जो रास्ता है उससे वो तेज़ तेज़ भागता हुआ चला जाता है. Soon everyone who was going to the market would walk past. They would be on their way to buy the delicious yams, beets, pulses and grains that would be piled high in the market. Now he thinks to himself, अब खुद से क्या सोचता है, कहता है कि जल्द ही यहाँ से सारे लोग मार्केट जाएंगे चीज़ें ख़रीदने के लिए. यम्स कहते हैं कचालू को, ये पल्सेस हैं दालें जो होती हैं, ठीक है, ये बीट है चुकंदर जो आप कहते हैं, एंड दिस इज़ यम्स, ठीक है, अरवी जिसको आप कहते हैं कचालू कहते हैं, ठीक है. सो लेट्स गो बैक. कहते हैं कि वो लोग जो हैं वो मज़े मज़े की चीज़ें ख़रीदने के लिए जब मार्केट में जाएंगे तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ. Anansi set to work and piled up 5 mounds of earth near the path. Mounds कहते हैं ढेर लगा देना मट्टी के, ठीक है, वो बैठ के और 5 ढेर लगा देता है अपने पास. They looked just like he had planted 5 yams. Then he sat down and waited. अब वो वहाँ पे वो मट्टी के ढेर लगाता है, इस तरह लगता है कि उसने वो कचालू के पौधे लगाए हैं, ठीक है, और उधर बैठ के वेट करता है. फर्स्ट टू कम बाय वॉज लिटिल मिसेस रैबिट. मैंने आपको पीछे कैरेक्टर्स के बारे में बताया था और अब सबसे पहला कैरेक्टर्स कौन सा है, मिसेस रैबिट. शी कैरीड अ बास्केट फुल ऑफ स्वीट पोटैटो पीसेस एंड वॉकड स्लोली बिकॉज इट वॉज हैवी. अब मिसेस रैबिट जब आई उसके पास एक बास्केट पकड़ी थी जिसके अंदर स्वीट पोटैटोज थे और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी क्योंकि बास्केट हैवी थी. Anansi stepped forward and smiled. That looks like a big weight. Please rest a while and help me. I don't know how to count, so I cannot tell how many yams I have planted. कहते हैं आगे आगे जाता है ना, एक स्टेप आगे और स्माइल करता है. कहता है आप बहुत थक गई होंगी ना, तो इसको अब आप यहाँ पे रखें, थोड़ी देर रेस्ट करें और मेरी भी हेल्प करें. मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने कितने प्लांट्स उगाए हैं. Mrs. Rabbit was kind, so she stopped. She put down her basket and hopped along the row, counting 1, 2, 3, 4, 5. वो तो बड़ी अच्छी थी, तो उसने क्या किया, बास्केट साइड पे रखी और छलांग लगा के जाके उनको काउंट करने लग गई. और जैसे ही उसने कहा 1, 2, 3, 4, 5,
इन अ फ्लैश एंड अ बैंग मिसेस रैबिट डिसअपियर्ड। क्योंकि वो जो विच थी, वो जो 5 थी, उसने बददुआ दी थी ना कि जो भी 5 वर्ड यूज़ करेगा तो वो डिसअपियर हो जाएगा। Anansi gobbled down the whole basket of sweet potato in seconds. He licked his lips and sat down again to wait. उसने क्या किया, जल्दी से वो बास्केट उठाई, उसमें से सारे वो पोटैटोज़ हड़प कर लिए, खा लिए उसने, और अपने लिप्स को ऐसे लिक करके चाट के साइड पे होके बैठ गया और दोबारा वेट करने लग गया। Not long after he heard little footsteps on the path and looked up. It was Mr. Duck. He walked along with his chest held high and his feet made a slip-slap sound on the path. He had a bag with his lunch in it by his side. Mr. Duck stopped when he saw Anansi and asked him how he was. अब थोड़ी देर गुजरती है तो वहाँ पे मिस्टर डक आ जाता है। ठीक है, वो ऐसे मज़े से ऐसे अकड़ के चलता है और उसके पाँव की ठप ठप की आवाज़ आ रही होती है। तो जैसे ही एनैंसी उसकी आवाज़ सुनते वो एकदम उठ जाता है और मिस्टर डक भी वहाँ पे स्टॉप करके उससे पूछता है एनैंसी से कि वो कैसा है। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू विद इट। सो नाउ आफ्टर दिस यू विल हैव टू डू hard words. Now open your books of English A. Write down the date and day. Draw the margin line. These are the hard words. Let me read them for you. First one is creature. Creature उर्दू मीनिंग है मखलूक। ट्रिक्स्टर, एज आई हैव टोल्ड यू कि जो चालें चलता है, चालबाज होता है। फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली। स्टरिंग, हल करना, मिक्स करना। मटरिंग एंड मम्पलिंग बोथ हैव सेम मीनिंग्स बट द वर्ड्स आर डिफरेंट। बुड़बुड़ाना, ठीक है, मुंह मुंह में कोई बात करना जो कि दूसरों को कम समझ आती है। गोबल, हड़प कर जाना। स्पार्कल, चमकना, चमक के उसके जो दांत थे वो एकदम चमकने शुरू हो गए। स्नैच कहते हैं झपटा मारना, ठीक है, या छीनना। कर्स कहते हैं बद्दुआ को। इंस्टेंटली, फ़ौरन। स्करिंग, तेज़ तेज़ चलने की आवाज़ होती है, स्करिंग, तेज़ तेज़ चलना। नंबर 13 इज़ ग्रैंड। ग्रैंड कहते हैं बड़े बड़े दांतों को जब वो दिखाता है अपने। एनएनसी जो है स्माइल करने को कहते हैं, ठीक है, अपने दांत दिखाता है वो। नंबर 14 इज़ ग्लिसन, चमकने को कहते हैं। नंबर 15 बॉदर, तंग होने को कहते हैं या परेशान होना। 16 फ्राउन कहते हैं माथे पे ऐसे बल आना, ठीक है। 17 बीनीथ, नीचे को कहते हैं। नंबर 18 डेलिकेसीज, डेलिकेसीज डिलीशियस फूड को कहते हैं। नंबर 19 अनप्लेजेंट, नाखुशगवार, बहुत गुस्से में होना, जैसे कि अभी हमने 5 के बारे में पढ़ा। नंबर 20 इज़ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज इज़ अजीब, ठीक है। सो यू हैव टू डू दिस वर्क वेरी नीटली इन योर नोटबुक्स ऑफ इंग्लिश ए।